اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ ناظرین، یہ انٹرنیشنل خبر ہے پہلی جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن نیشنل نیوز میں بھی ہمارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اور کتنا شدت کا زلزلہ آیا ہے، جسے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت کہا جا رہا ہے، ترکی اور شام میں، اسرائیل تک، بلکہ ترکی کے 10 شہروں میں تو تباہی ہوئی ہے، لیکن یہ اسرائیل وغیرہ بھی اس سے لرز اٹھائے، لبنان اور اسرائیل بھی لرز اٹھائے۔ اور اخبارات میں تو کل شام تک کی جو ہیڈ لائن ہے وہ 2500 کی ہلاکتیں ہیں، لیکن جو ہم نے معلومات لی ہے، مولانا خلیل صاحب دیوا، جن کے بہت سے جاننے والے باہر ملکوں میں رہتے ہیں، مولانا خلیل صاحب دیوا جو اکثر قیامت کے تعلق سے بولتے رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 5000 سے زائد لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہے اور 3000 سے بھی زیادہ بلڈنگیں، عمارتیں اب تک گر چکی ہے، اور دونوں ملکوں میں زخمیوں کی تعداد 11000 سے اوپر پہنچ چکی ہے۔ ترک کے صدر رجب طیب اردوغان نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دیا ہے۔ نیٹو، یورپین یونین کنٹریز اور ہندوستان سمیت 45 ملکوں سے امداد کی پیشکش کی گئی ہے۔ 100 جوانوں پر مشتمل NDRF کی ٹیم بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مشرق وسطی کے کئی ملک میں گزشتہ کل صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے قیامت صغریٰ کا منظر لوگوں نے دیکھا۔ ہر طرف چیخ و پکار اور آہ و بکا سے آسمان لرز اٹھا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ترکی، شام، لبنان اور اسرائیل میں 7.8 کی شدت والے زلزلے نے کئی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں۔ ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر ملک کی راجدھانی دلی کے جنتر منتر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہاں پر دلی کے جنتر منتر پر باگیشور دھام پیٹھادیشور کی حمایت، سمرتھن میں بات کی گئی، اور دھرم سنسد سے سادھوؤں نے جم کر اشتعال انگیزی کی، بھڑکاؤ بیان دیا، اور ایک بزرگ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، بلکہ آتنکوادی جیسے الفاظ بولنے والا سادھو سنت، اس نے کہا کہ مسلمان اور عیسائیوں کو تم کب مارو گے، مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو کب کاٹو گے۔ بالکل اجمل قصاب کی زبان بھگوا ڈریس پہننے والے ایک سادھو نے بولا۔ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس آتنکوادی پر کیا مودی سرکار، دلی سرکار کارروائی کرے گی؟ جی ہاں،
क्योंकि पूरी तरीके से आतंकवाद के जुमले और काटो और मारो के जुमले कहे जा रहे हैं। उस साधु ने जो आतंकवादी जबान बोला है उसमें उसने कहा कि अंग्रेजों ने कहा था कि तोड़ो बांटो राज करो, कांग्रेस ने कहा था कि तोड़ो बांटो राज करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो राज करो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाइयों, तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? तुम्हारे पास क्या है कि मारोगे? इतनी सी चाकू है जिससे तुम सब्जी काटते हो। यानी ये अल्फाज बता रहे कि कितना खुले आम मुसलमानों और ईसाइयों को मारने और काटने की बात हो रही है, और अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ऐसा लगता है कि हुकूमत भी बाकायदा खामोश रहकर ऐसा माहौल बनाना चाहती है, और ऐसे आतंकवादियों को छूट हुकूमत इसलिए दे रही है ताकि ऐसा माहौल बनेगा तो हुकूमत को लग रहा है कि 2024 में इसका भरपूर फायदा होगा। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी अफसोसनाक खबर। जी हां, जिस तरीके से हिंदू आतंकवादी आतंक का नंगा नाच खेल रहे हैं और मुल्क में ऐसे भाषण देकर माहौल बना रहे हैं, उसके असरात भी दिखना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर आ रही है कि खंडवा में एक इमाम मस्जिद पर कातिलाना हमला हुआ। इमाम पर शरपसंदों ने आंख में मिर्च पाउडर पहले डाला और फिर चाकुओं से वार किया। अस्पताल में इलाज जारी है। इत्तलात के मुताबिक खंडवा की मोहम्मदी मस्जिद पटेल कॉलोनी में वो इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तभी शाह फर्नीचर अंजनी टाकीज के पास मोड़ पर उनकी गाड़ी धीमी हो गई। उसी वक्त 3 लड़के पैदल थे, कोई बातचीत नहीं हुई। इन तीनों में से एक ने इमाम मस्जिद को जान से मारने की नीयत से दाहिने तरफ से चाकू से वार किया, जिससे उन्हें चोट लगी, खून बहना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों ने उनकी आंख में, इमाम साहब की आंख में मिर्च भी फेंकी, जिससे उनकी आंख मुतासर हुई है। इमाम साहब के मुताबिक उन्होंने मोटरसाइकिल जख्मी हालत में ही आगे बढ़ाई और दर्द मुसलसल ज्यादा होने की वजह से उनके पीछे बैठे मोहम्मद भाई ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और अस्पताल पहुंचाया। खैर, इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में बताया गया है कि छुरा मारने से पहले मुतासरा और मुजरिमों के दरमियान कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। नाज़रीन, गौतम अडानी जो कई चैनलों का आका और मालिक है, जो आज तक उसको बढ़ावा देते आए हैं, और किसका सर पर, गौतम अडानी के सर पर किसका हाथ है और गौतम अडानी का हाथ किसके सर पर है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अडानी ने पूरे मुल्क के लाखों जनता को डुबोने का काम किया है और हुकूमत ने उसको दबाने और छुपाने का काम किया, यानी हुकूमत भी जिम्मेदार है। इसलिए आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो डायरेक्ट कहा है कि गौतम अडानी की इसलिए इंक्वायरी नहीं करवाई जा रही है कि ये सीधा मोदी तक मामला पहुंचता है। खैर, अडानी को लेकर गुज़िश्ता कल कांग्रेस ने पूरे मुल्क में जबरदस्त एहतजाज किया। स्टेट बैंक और LIC के ऑफिस पर धरना दिया और धोखाधड़ी पर इंक्वायरी का मुतालबा किया। अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावटों का सिलसिला जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब तक 118 बिलियन का नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता कल मुंबई में भी जबरदस्त कांग्रेस नेताओं ने एहतजाज किया। भाई जगताप ने मुतालबा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने की हिम्मत दिखाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि गौतम अडानी का पासपोर्ट वो जब्त करें, क्योंकि तार सबके एक ही है। और गौतम अडानी अगर भाग जाता है, उसका पासपोर्ट नहीं जब्त किया जाता और वो अगर भाग जाता है तो मुल्क के लाखों लोग डूब जाएंगे। 15 दिनों में मुंबई कांग्रेस BSC, NSC और ACBI के दफातर के बाहर भी एहतजाज करेगी, जो अडानी ग्रुप की मदद कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट पर भी सख्त तनकीद की गई। अडानी मामले में पार्लियामेंट मुसलसल तीसरे दिन भी ठप रही। पार्लियामेंट में तमाम लोग कह रहे हैं कि अडानी की पूरी तहकीकात करवाई जाए। शोर शराबे के दौरान गुज़िश्ता कल भी दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया, कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबर आ रही है कि योगी सरकार ने भी अडानी ग्रुप के हजारों करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया। यानी यूपी हुकूमत ने भी अडानी ग्रुप को यानी अडानी को आटा को ही बड़ा झटका दे दिया है। 24 जनवरी को अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की जानिब से अडानी ग्रुप पर करप्शन से मुतालिक जो इल्जामात लगे, उसके बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर मुसलसल गिर रहे हैं और अब योगी सरकार ने भी ठेंगा दिखाते हुए अडानी ग्रुप के हजारों करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया है। यानी अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां, ये साबित हो गया है। आइए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफ बर्दारी हुई है, शपथ विधि हुई है। इसमें पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को ओहदे का हलफ दिलाया, जिसमें पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल हैं। आइए नाज़रीन, संघ परिवार आरएसएस के सुप्रीमो सरबराह, आप जानते हैं कि संघ का और आरएसएस का इस मुल्क पर बड़ा एहसान है, बहुत एहसान है। मुल्क के लिए आरएसएस ने जो किया है दुनिया की कोई ताकत वैसा नहीं कर सकती। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो खैर, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। मोहन भागवत ने कहा कि जात पात और फिरके भगवान ने नहीं, पंडितों और पादरियों ने बनाए हैं। मोहन भागवत ने इतवार के रोज कहा कि ज़मीर और बेदारी शूर मुल्क में पहले जैसे ही है, सिर्फ ख्यालात का इख्तलाफ है। और उन्होंने कहा कि जब हम रोजी रोटी कमाते हैं तो समाज के तई भी हमारी जिम्मेदारी पैदा हो जाती है, कोई काम छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है। और ये भी उन्होंने कहा कि जात पात और फिरके भगवान ने नहीं बनाए, ये सब जात पात और फिरके पंडितों और बिरादरियों ने बनाए हैं। ये इख्तलाफात हमारे पादरियों पंडितों ने पैदा किए हैं जो गलत हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि फिर अब दलित बौद्ध ये अगर जात पात फिरके पंडितों ने बनाए हैं तो फिर संघ परिवार और खास तौर से आरएसएस इनसे नफरत करना छोड़ दे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुंबई दौरा करेंगे। जी हाँ, ज़िल्ले-लाई हजरत शेख मोदी जी तशरीफ लाएंगे मुंबई, इसलिए मुंबई में हिफाजती तैयारी बड़ी जोरों शोर से शुरू हो गई है। पुलिस ने 10 फरवरी को शहर में उड़ानों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अब अपोजिशन पार्टियां कह रही है कि जब उड़ानों पर पाबंदी रहेगी तो फिर नीचे गाड़ियों का क्या हाल होगा। यानी मोदी जी फिर मुंबई आकर मुंबई वालों को परेशान करने का इरादा रखते हैं। और अपोजिशन पार्टी तो ये भी कह रही है कि आखिर ये दूसरा तीसरा दौरा मोदी जी का ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल इलेक्शन करीब आ रहे हैं और शिंदे और फडणवीस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मोदी जी के नाम पर इलेक्शन मुंबई म्युनिसिपल इलेक्शन जीतने की तैयारियां शुरू है और 2024 की तैयारियां है। खैर कुछ भी हो, ज़िल्ले इलाही हजरत शेख मोदी जी तशरीफ ला रहे हैं तो मुंबई वालों को तकलीफ तो होगी और मुंबई वालों को तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। तवक्को है कि मोदी जी बाकायदा दाऊदी बोहरा बिरादरी की अरबी एकेडमी के इफ्तिताह के लिए आ रहे हैं। मुंबई में अंधेरी ईस्ट का वो दौरा करेंगे। दाऊद बोहरा के सरकारी ट्विटर हैंडल ने इस बात की तस्दीक की है। आइए बड़ी अजीब व गरीब चौंकाने वाली खबर महाराष्ट्र की आ रही है। जी हाँ, अडानी कौन नहीं जानता है। अडानी फिलहाल बदनाम जमाना लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। लाखों हिंदुस्तानियों को डुबोने का सहरा इनके सर बंधा हुआ है। पूरा मुल्क हाय अडानी कर रहा है और महाराष्ट्र हुकूमत ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। महाराष्ट्र हुकूमत की जो इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल है, जो टीम है, बड़ी अहम ये इदारा होता है, इसमें अडानी को भी शामिल किया गया है। हुकूमत का जीआर भी सामने आ गया है, जारी हो गया है
अब अपोजिशन ने कहा कि ये रियासत ही यानी महाराष्ट्र को ही अडानी के हवाले कर दो, ताकि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेगे। अडानी ने लाखों हिंदुस्तानियों को डुबोने का काम तो किया है, LIC और कई बैंकों का दिवालिया निकाल दिया है, और महाराष्ट्र की हुकूमत अडानी को अपने ग्रुप में शामिल कर रही है। इसलिए अपोजिशन चिल्ला रही है, और चिल्लाते हुए अपोजिशन ने कहा शिंदे और फडणवीस से कि एक काम करो, पूरा महाराष्ट्र ही अडानी को दे दो, ताकि पूरा महाराष्ट्र ही नक्शे से गायब हो जाए। दिन आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, हिंदुस्तान के केरला से पैदल हज सफर पर निकले शहाब छिट्टुर 4 महीने से पाकिस्तान बॉर्डर पर रोक दिए गए थे, और उन्हें पाकिस्तान से पैदल गुजरने का वीज़ा नहीं मिला था। 4 महीने तक शहाब छिट्टुर बॉर्डर पर ठहरे रहे। आखिर गुज़िश्ता कल आपने देखा कि हमने डायरेक्ट शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान साहब से बातचीत की। मौलाना उस्मान साहब का बड़ा रोल और बड़ा किरदार रहा शहाब छिट्टुर को पाकिस्तान से वीज़ा दिलाने में, तो हमने उनसे डायरेक्ट बात की, और बिलआखिर शहाब छिट्टुर को पाकिस्तान से गुजरने की इजाज़त मिल गई। पैदल हज के लिए वो वाघा से दाखिल हो गए और काबा तक का सफ़र करेंगे। दूसरे दौर का उनका सफ़र का आगाज़ और इब्तिदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना उस्मान साहब ने बताया कि ईरान ने पहले ही से वीज़ा दे रखा था, और तमाम वीज़े उनको पहले ही मिल चुके हैं। तकलीफ़ पाकिस्तान से पैदल गुजरने की आई थी, अब वो 1500 किलोमीटर का पाकिस्तान में पैदल सफ़र करेंगे। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनके इस सफ़र को, उनके मकसद को, उनके मिशन को कामयाब फरमाए, और 2023 के हज के सफ़र में वो शामिल हो जाएं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।